Hi friends, this is Praveen Singh and I welcome you all on your channel Positive Approach. Those who are actually preparing for REFCAT, CDS and any kind of examination where English plays a very important role, this channel is actually for you. And I would also like to mention that this channel is actually one-stop solution for your all questions. And as I promised you, in your journey to achieve your goal, we are with you to help you through this channel. Therefore, I am here with first video on English language. I would also like to mention here that I am here with a vision, a motto. My overall focus is actually on your overall growth, where everything which I feel is essential, I will definitely make a content and will deliver to you through this channel. Friends, I have an experience of 11 years and I know where you feel trouble and I also know how to improve that. So just by getting through the books will not get you success, because the people those actually refer books often called bookworm, often considered as a bookworm. So just be in touch by subscribing this channel and consequently watching all the videos. You will gradually improve or enhance your personality, I can guarantee you. The very first day when I created this channel, I was very much aware. You know what I was actually very much aware about my goal, about my motive, about my focus, the purpose for which actually I am working every day. But just being anxious will not actually fulfill my purpose, I know. Because just showing you, just being sincere, just to provide all the details, all the relevant thing will not fulfill my purpose. So now I am incessantly analyzing the procedures and the method which can work for you like a panacea to groom you from every aspect. From every aspect, dear friends, I'm telling you, from every aspect, I am just thinking about your overall development. I really feel very verbose now. I don't want to be pedantic in my speech because this is first time when I'm interacting with you guys. So this is enough for now. Let's begin with our first session of English. We will definitely get some time to discuss all these things. But for now, I want to tell you something. Like, as you all know, this is a new channel and maximum aspirant those are actually subscribing it are new to this channel and they are beginners, and just keeping in mind I'm simply making all the videos and creating all the videos in both language, but I'll prefer Hindi and English both during the session. While I'm teaching something, I'll simply switch to Hindi and English also. So for now I'm just switching to Hindi. तो आप लोगों को मैं बता देता हूँ कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही वीडियोस रहेंगे. जिन लोगों को अभी जो शुरुआत से वीडियो देख रहे हैं, मैं बता रहा हूँ आपको, जितना समय आप प्रैक्टिस पे दोगे, जितना समय आप सेशन पे दोगे, एंड आई कैन गारंटी यू ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको. मुश्किल से मुश्किल 1 महीना 2 महीना बहुत होता है चीज़ों को ग्रेस्प करने में. तो बस ट्यून करते रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, आप बेल आइकन वगैरह दबा के रखिए ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें इसके जब भी मैं नया वीडियो डालूँगा. और बस आप वीडियोस देख लें, आपका काम हो जाएगा. इस बात की मैं गारंटी देता हूँ. तो चलिए अब हम पहली स्लाइड से शुरू करते हैं. सब लोगों को मैंने ऑलरेडी, मुझे लगता है कि बहुत लंबी जो है बात हो गई. मैं इतनी बात करना नहीं चाह रहा था, लेकिन फिर भी ज़रूरी था कि थोड़ा सा आप लोगों से इंटरेक्शन हो जाए. यूट्यूब भी यही कहता है कि अगर आप इंटरेक्शन जितना ज़्यादा रखोगे अपने ऑडियंस के साथ में, अपने व्यूअर्स के साथ में, उतना ज़्यादा ही वो फ्रूटफुल होता है, वर्थवाइल होता है, वर्दी होता है आपके चैनल के लिए. तो बस वही मैं कर रहा हूँ. इंटरेक्शन बना रहना चाहिए. और इंटरेक्शन कैसे होगा, ऐसा नहीं कि मैं बोलते जा रहा हूँ बस कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है. आप लोग कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कीजिए, मुझे भी अच्छा लगेगा. नया हूँ चैनल पे, कुछ चीज़ें हो सकता है कि आपको लग रहा हो कि ये सुधार की ज़रूरत है, तो आप वो भी बताइए एंड डेफिनेटली आई विल कंसिडर दैट. तो चलिए उसी गर्मजोशी के साथ में, उसी विज़न, उसी पर्पज़ के साथ में आज का करते हैं सेशन शुरू. और आपकी पहली स्लाइड रही ये. सो टेल मी, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ SOS मीन्स. हियर आर 4 ऑप्शंस: इंटेंसिफाई, फील, इरेज एंड इंक्लूड. कौन सा ऑप्शन सही होगा?
SOS का मीनिंग मैं बता देता हूँ आपको। SOS का मतलब होता है टू मेक समथिंग ईजियर, किसी चीज़ को शांत कर देना, बुझा देना, या फिर मैं बोलूँ किसी भी मतलब परिस्थिति को मान लो कुछ ज़्यादा इंटेंसिफाई हो रही है उसको कम कर देना। तो क्या होगा यहाँ पे, यहाँ पर होगा ऑप्शन सी इरेज, यानी कम कर देना। सिनोनिम पूछ रहा है ना। चलिए नेक्स्ट स्लाइड। द एंटोनिम ऑफ प्रोविंशियल, प्रोविंशियल का एंटोनिम पूछ रहा है, ठीक है। तो डेंजरस होगा, लोकल होगा, स्ट्रेंज हो गया, कॉस्मोपॉलिटन होगा। बड़ा इजी समझ में आ रहा है, प्रोविंशियल होता है लोकल, तो फिर अपोजिट क्या होगा, अपोजिट होगा कॉस्मोपॉलिटन। भाई ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे ट्रिक करके, जब आप क्वेश्चन दोगे कहीं भी एंटोनिम सिनोनिम्स वाले अगर उसमें आएंगे तो इसी तरह से आएंगे। या तो वो आपसे पैराग्राफ में पूछ लेगा कहीं, या कैसे ही पूछ लेगा। तो ऐसा मत करना कि एंटोनिम पूछा सिनोनिम लिख दिया, तो वो नहीं करना है। तो प्रोविंशियल का क्या होगा यहाँ पे एंटोनिम, कॉस्मोपॉलिटन। थर्ड, द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट टू एलिमिनेट द डैश एक्सप्रेशन इन देयर ऐसे। तो कौन सा हटा देना है, कौन सा मतलब उसमें एक्सप्रेशन कम कर देना है। तो इसमें क्या आएगा, एक देखिए इसमें क्या है। तो यहाँ पे दिए हैं 6 वर्ड। पहला अंक्टस, हैकनेड, कोलेजन, इंटरसीड, प्रेरोगेटिव और हेटस। तो मैं सभी का बताता हूँ आपको। अंक्टस का मतलब होता है खुशामदी, या फिर इंग्लिश में बोलूँ ट्राइंग टू हार्ड टू गिव द इम्प्रेशन ऑफ सिंसियरिटी। हैकनेड होता है द थिंग विच इज़ नॉट फ्रेश येट। कोलेजन का मतलब होता है टू फॉर्म अ ग्रुप। इंटरसीड का मतलब होता है द टाइम व्हेन यू आर एक्चुअली इंटरफेयरिंग और इंटरमीडिंग इन समथिंग, घुस गए भाई जानबूझ के। प्रोग्रेटिव होता है स्पेशल राइट्स। और हिएटस का मतलब होता है गैप, मतलब एक ब्रेक लेना है भैया किसी भी चीज़ से। तो हिएटस होता है उसका मतलब भाई मूवी से ब्रेक ले लिया, हिएटस वो सारा कुछ। तो यहाँ पर आएगा आपका हैकेंड। तो चलिए चौथा देख लेते हैं। द सीन इन द हॉरर मूवी वर सो डैश दैट वी शुडंट स्लीप दैट नाइट। तो इसमें क्या आएगा, किस तरह का था वो, इसमें किस तरह का था। तो इसमें मैं बता देता हूँ, आपको आएगा ल्यूरिड। ऑलरेडी मैं आपको हैकनेड का बता चुका हूँ। द थिंग इज़ नॉट फ्रेश, ल्यूरिड होता है एकदम द थिंग विच इज़ एक्चुअली शॉकिंग और हॉरिफिक। जेडिड क्या होता है, जेडिड का मतलब क्या होता है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे, कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। तो इसमें ऑप्शन क्या आएगा, मैं पहले सभी का अटर कर देता हूँ एक बार। पेटुलेंट होता है जो बंदा इजीली मतलब किसी बात पे बस थोड़ी सी देर में ही एकदम खींच जाता है भैया, एकदम परेशान हो गया, एकदम से गुस्सा आ गया उसको, होता है पेटुलेंट। दूसरा हैकनेड में ऑलरेडी बता चुका हूँ, द थिंग इज़ नॉट फ्रेश। ल्यूरिड होता है शॉक एंड हॉरिफिक। जेडेड का भी चलिए बता ही देता हूँ, जेडेड का होता है वॉर्न आउट, मतलब रगड़ गया एकदम से। तो भाई लोगों मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ कि ये सारी वोकेबुलरी वर्ड मैं आगे स्ट्रक्चर्स में यूज़ करने वाला हूँ, तो गौर से इन चीज़ों को देखिएगा। अगर मान लीजिए आपको कहीं डाउट आ रहा है ना तो कमेंट बॉक्स में प्लीज़ कमेंट करके पूछ लो, मैं क्लियर कर दूँगा। पेटुलेंट ऑलरेडी बता चुका हूँ मैं, जो आसानी से जो है जिसको गुस्सा आ जाए, खींच जाए जो, या इंग्लिश में इसको बोलते हैं वन हु इज़ एक्चुअली ईजिली इरिटेबल। हैकनेड ऑलरेडी होता है द थिंग विच इज़ नॉट फ्रेश, नॉट एक्चुअली फ्रेश नहीं होता है, विच इज़ नॉट एक्चुअली फ्रेश येट। और बाकी सारे आपको पता है, रीड शॉक एंड हॉरिफिक, जेडेड होता है गड़गड़ गया टाइप। पांचवा पढ़ते हैं एन इनडायरेक्ट सजेशन। एन इनडायरेक्ट सजेशन के लिए वन वर्ड टाइप यहाँ पे क्या होगा। कोलिजन आप समझ पढ़ ही चुके हो ऑलरेडी भैया, समूह होता है। प्रेरोगेटिव स्पेशल पावर्स होती हैं, मतलब स्पेशल राइट्स, भाई कोई बंदे का स्पेशल राइट है, भाई मैं पहले आया था तो मैं पहले जाऊँगा, ऐसे टाइप राइट हो गया, भाई अधिकार कर लिया उसने। इन्यूडो होता है हिंट, बड़ा अच्छा शब्द है, याद रखना, इन्यूड होता है हिंट। तो यहाँ पर क्या आया, यहाँ पर आया अम्ब्रेज। अम्ब्रेज का मतलब होगा क्या भाई, डी होगा ऑप्शन। तो छठवा बताइए, द फुटबॉल क्वार्टरबैक डैश ऑल एक्सपेक्टेशंस इन हिज फर्स्ट प्रोफेशनल डेब्यू। तो क्या होता है, तो ऑप्शन बताइए आप मुझे। इंटरसीडेड, ट्रांसेंडेड, इलिसिटेड या फिर अस्वाज्ड, इनमें से क्या होगा। तो भाई द फुटबॉल क्वार्टरबैक डैश ऑल एक्सपेक्टेशन इन हिज फर्स्ट प्रोफेशनल डेब्यू, मतलब कि वो बंदा उनकी उम्मीदों से भी ज़्यादा क्या कर गया, बढ़ गया आगे। तो इसमें क्या आएगा, इसमें आएगा सीधा सा ट्रांसेंडेड। तो ट्रांसेंडेड क्यों आएगा, ट्रांसेंडेड का मतलब होता है टू राइज अबव, यानी कि बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन से भी ऊपर उठ गया भाई वो बंदा। इंटरसीडेड आपको पता ही है, हिचपिचाओ करना भाई, कहीं घुस जाना। एलिसिटेड मतलब होता है इवोक करना किसी को। और स्वाज्ड का मतलब तो आपको पता ही है, टू मेक समथिंग ईजी। चलिए आगे वाली स्लाइड देखते हैं। सातवीं, हिएटस मीन क्या होता है। डेप्थ होगा, फैक्ट होगा, ग्लूम होगा या गैप होगा, बताइए। डेप्थ तो पता ही है, फैक्ट भी पता है आपको, ग्लूम होगा कि गैप होगा, बताइए बताइए कमेंट बॉक्स में बताइए। चलो ये मैं ना आपके लिए छोड़ देता हूँ, ऑलरेडी मैंने हिएटस का मीनिंग आपको बता दिया था पहले क्या होता है।
ये मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, आप मुझे यहाँ पर इसका आंसर देंगे कमेंट बॉक्स में, क्या इसका ऑप्शन होगा। आगे की स्लाइड देखते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड आपकी ये रही, यहाँ पर है एक्सपोस्टुलेट का मतलब क्या होता है, बताइए। एक्सपोस्टुलेट का मतलब क्या है, पहले मीनिंग बताओ फिर बताओ कि नाउन है, वर्ब है, एडजेक्टिव, एडवर्ब। जब मीनिंग पता होगा तो अपने आप पता चल जाएगा। एक्सपोस्टुलेट का मतलब होता है किसी चीज़ को समझाना। तो एक्सपोस्टुलेट का मतलब होता है समझाना। तो समझाना क्या है, समझाना क्या है, समझाना है वर्ब, क्रिया, क्या कर रहा है, समझा रहा है। तो ऑप्शन होगा बी। 9th, द टीचर गेव द स्टूडेंट एन असाइनमेंट टू डैश द ग्रेट डिप्रेशन। किस चीज़ के लिए असाइनमेंट दे दिया। सिमुलेट का मतलब होता है दिखावा। अस्वाज का मतलब होता है कम करना। अप्रोवेशन का मतलब होता है किसी चीज़ की सराहना करना, कमेंडेशन, अप्रूवल, प्रेज। और अंकटस का मतलब तो आपको पता ही है, अंकटस का मतलब होता है खुशामद करना। इंग्लिश में कहूँ तो ट्राइंग टू हार्ड टू गिव द इम्प्रेशन ऑफ सिंसियरिटी। वेटर करते हैं देखो जनरली कितनी ज़्यादा खुशामद करते हैं जब आप होटल में जाते हो, है ना। तो वही है, ही ऑलवेज ट्राई टू गिव, क्या देने की कोशिश करता है, इंप्रेशन ऑफ सिंसियरिटी की, कितना सिंसियर है भैया, आप जो मांग रहे हो वही लेके आ रहा है। तो यहाँ पर 4 मीनिंग हो गई। इसमें आपका आएगा क्या, यहाँ पर आएगा अस्वाज, मतलब उन्होंने क्या डिप्रेशन कम किया। द टीचर्स गेव द स्टूडेंट्स एन असाइनमेंट टू अस्वाज द ग्रेट डिप्रेशन। तो हो गया बी। 10th स्लाइड, द स्कूल बोर्ड हैज़ द डैश टू इनिशिएट पॉलिसीज़ दैट अफेक्ट स्टूडेंट्स। तो क्या स्टूडेंट जो है, स्कूल जो है, स्कूल बोर्ड, उन्होंने क्या किया, हैज़ द डैश टू इनिशिएट पॉलिसीज़ दैट अफेक्ट स्टूडेंट्स। तो इसमें क्या आएगा, अम्ब्रेज आएगा, इंड्यूंडो आएगा, प्रोग्रेटिव आएगा, एब्रोवेशन आएगा। ऑलरेडी मैं सब बता चुका है, बता दिया आपको। तो उन्होंने क्या हिंट दिया भैया, इन्नेडो आएगा यहाँ पे, ठीक है। ठीक है, 10 का हो गया बी। आगे चलिए। 11th है, द मेरिट स्कॉलर विनर रिसीव्ड द डैश ऑफ द स्टूडेंट्स बॉडी फॉर हिज सक्सेस। तो मेरिट स्कॉलर क्या होता है, मेरिट, देखो यहाँ पे एक हिंट भी देता हूँ आपको। मेरिट वाला जो बंदा होगा ना, उसका हमेशा मेरिटोरियस होता है वो, सीधा सा। मेरिटोरियस मतलब द वन हु इज़ एक्चुअली वर्दी एंड डिजर्विंग ऑफ रिकॉग्नाइजेशन। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा मेरिटोरियस 11 में। बाकी की मीनिंग आपको पता है, पेटुलेंट, डिकेडेंस, अप्रोवेशन, सब पता है। चलिए आगे की स्लाइड देखते हैं अभी। आफ्टर वॉचिंग द ट्रायल ऑफ क्रूक्ड जजेस आई वॉज डैश अबाउट द जुडिशल सिस्टम। कैसा था, अंकटस था, ल्यूरिड था, जेडिड था, या फिर ट्रांसेंडेंट था, बताइए। मतलब ट्रांसेंडेंट का तो आपको पता है, टू राइज अबव। ल्यूरिड का भी पता है, शॉक एंड हॉरर। अंकटस का भी पता है आपको क्या होता है अंकटस का। अंकटस का तो ऑलरेडी मैं आपको 3 बार बता चुका हूँ। तो यहाँ होगा जेडिड, बी। तो 13 का आपको देख लेते हैं। द डेफिनेशन ऑफ अंकटस इज सर्वाइल, टू अर्नेस्ट, ग्रफ, ब्लंट, अनस्पॉइल्ड, ब्लेम वर्दी। तो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ भाई। होटल में जाते हो क्या होता है, बंदा आता है, पूछता है भैया क्या चाहिए, तो वो क्या करता है, अर्न कर रहा है पैसे यार, तो सर्वाइल टाइप ही होगा, है ना। बाकी अनस्पॉइल्ड मतलब कि जो बर्बाद ना किया हो। ब्लेम वर्दी भैया जिसको आप दोष दे सको। तो यहाँ पर ऑप्शन ए, 13 का हो गया आपका ए। 14 की बात कर लेते हैं। प्रोविंशियल इज़ क्या है, नाउन, अ वर्ब, एन एडजेक्टिव, एन एडवर्ब। क्या है, नाउन है, वर्ब है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, क्या है, बताइए। बताइए बताइए क्या होता है। चलिए मैं बता देता हूँ आपको। प्रोविंशियल का मतलब होता है लोकल। अगर हम बात करते हैं ना प्रोविंशियल अथॉरिटीज़ वगैरह, तो लोकल, तो वो क्या होता है, एडजेक्टिव, विशेषण, है ना, विशेषण है। तो यहाँ पे क्या होगा, सी। 15 क्वेश्चन देखते हैं। ए डैश ऑफ यूएस एंड इराकी फोर्सेज सिक्योर्ड एन अनस्टेबल प्रोविंस इन नॉर्दर्न इराक। क्या किया उन्होंने। तो यहाँ पर आपका जब कभी भी दो उसकी बात होगी ना, तो हमेशा उनका कोलिजन ही होता है। कोलिजन मतलब आपस में जो है, प्रोग्रेटिव तो नहीं होगा, स्पेशल राइट तो नहीं हो सकते उनके। प्रोविंशियल भाई लोकल बॉडीज़ होगी, ऑलरेडी हम यूएस और इराक की बात कर रहे हैं। अम्ब्रेज होता है द शेड ऑफ अ ट्री समथिंग, बट यहाँ पर होगा आपका कोलिजन। कोलिजन मतलब दोनों की गठजोड़। 16 देखते हैं। आई टुक डैश एट हिज न्यूमरस इंसल्ट अबाउट हाउ आई वॉज डिप्रेस्ड। तो ऑप्शन दिए हैं 4। अंकटस आपको पता है, हिएटस आपको पता है, ब्रेक होता है, अंकटस आपको पता है क्या होता है, इंप्रेशन ऑफ सिंसियरिटी, अम्ब्रेज होता है रोष या नाराज़गी,
और लास्ट है डी इन्यूएंडो मतलब हिंट। यहाँ पे लिखा है आई टुक डैश, तो डैश मतलब क्या, यहाँ होगा अम्ब्रेज, हमें मतलब उसकी नाराज़गी हो गई उसे उसकी इंसल्ट से, तो ऑप्शन हो गया सी। आगे बढ़ते हैं 17 में। हर डैश एटीट्यूड अबाउट एवरीथिंग वी डिड टू ट्राई एंड हेल्प हर वॉज एक्सट्रीमली अनोइंग, तो कौन सा। हैकनेट बताया आपको, जो फ्रेश नहीं है मतलब दैट इज़ नॉट फ्रेश एनी मोर। ल्यूरिड मतलब शॉक एंड होता है। जेटेड मतलब वॉर्न आउट जस्ट बिकॉज ऑफ एक्सेसिव इंटेलिजेंस, तो यहाँ पर आपका होगा पेटुलेंट, मतलब जिसको बोलते हैं ईजिली इरिटेबल, मतलब इरिटेट हो जाता है बहुत ज़्यादा तुरंत ही मतलब किसी बात को, तो यहाँ आएगा पेटुलेंट 17 में ए। 18 की बात करते हैं। इंटरसीड, इंटरसीड में क्या आएगा बताइए। इंटरसीड में आपका क्या है, नाउन है, वर्ब है, एडजेक्टिव है, क्या है कि एडवर्ब है। इंटरसीड होता क्या है पहले ये बताओ। इंटरसीड ऑलरेडी बता चुका हूँ मैं, आप बताइए इंटरसीड होता क्या है। तो भाई इंटरसीड का मतलब होता है घुस जाना कहीं भी, टू सर्व एज अ गो बिटवीन अ डिसएग्रीमेंट, ठीक है। तो यहाँ पर ही होगा आपका वर्ब होगा बी। 19 की बात कर लेते हैं। एंटोनिम ऑफ इलिसिट इज, इलिसिट का मतलब होता है इवोक, किसी चीज़ को मतलब ऐसे बोलते हैं ना कि भाई इवोक कर रहा है मुझे बंदा बहुत ज़्यादा, है ना, चीज़ों को मतलब वो करने के लिए, भाई लोगों से बातें निकलवाना। तो ड्राइव अवे का मतलब क्या होगा, छोड़ देना, जाने दो टाइप। तो ड्रो फोर्थ का मतलब तो वही होता है जो इलिसिट का होता है, लेकिन एंटोनम पूछे हैं तो एंटोनम क्या होगा, ड्राइव अवे, ठीक है। आगे चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे ऑफ द सेशन ऑफ इंग्लिश। द डैश ऑफ द रिच इज़ ओवरवेलमिंग। ओवरवेलमिंग का मतलब मैं आपको बताया था, ओवरवेलमिंग का मतलब होता है बहुत ही ज़ोरदार, बहुत तीव्र भावना के साथ में, है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा आपका डिसर्डेंस, मतलब इसका मतलब होता है डिसर्डेंस का मतलब क्या होता है, डिक्लाइन, डिके, एक ही चीज़ होता है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलेंगे आपसे, तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि और मोटिवेशन मिले मुझे वीडियो बनाने के लिए। थैंक यू सो मच।